Well, good noon, everyone, and let's continue with AVL tree. Let's recall very quickly whichever we have discussed in the first session today. AVL tree is a self-balancing binary search tree. It's a binary search tree, means lesser on the left, greater on the right, everything is being handled there, okay? And it is self-balancing, means we have to balance the tree. Now this is a height balance tree, so we are going to have a look at difference between height of left subtree and the height of right subtree. If that difference is around 0 or 1, it's okay. If that difference is more than 1, then it's not okay, we have to balance it. So that's what the AVL tree is. Each and every node will be calculated a balance factor. Each and every node will have its own balance factor. And how do we calculate? We simply have a look at the height of left subtree minus height of right subtree gives you the balance factor. If that balance factor is either -1, 0 or 1, then it is valid, it's okay. If it is something else, then tree is not a valid AVL tree. Wherever you have a problem with balance factor, at that place we have to make some arrangements. Now those arrangements are nothing but some kind of rotations we are going to make so that balance will be done or achieved. So let us have a look at how we can create AVL tree or how we insert value in AVL tree. And then we will see if there is any problem, we'll make some arrangements. If there is no problem, we are done. So insert operation on AVL tree. AVL tree is what? Once again, self-balancing binary search tree. Now if it is binary search tree, then insert operation will be similar to binary search tree. Binary search tree में insert कैसे किया था? You always start with root and you find the path. Lesser है तो left जाएंगे, greater है तो right जाएंगे. We go left right, left right, left right. We go up to leaf place. And when we found a place, we insert that value. Similar way, we are going to insert a value in AVL tree also. But the additional part is what? Additional part यहाँ पे क्या है? Balance होना चाहिए. Balance किसके हिसाब से? Height के हिसाब से. Height मतलब कैसे calculate करते हो? Balance factor. What is balance factor? Left minus right. तो आप नया नोड जैसे ही इंसर्ट करोगे, हाइट का डिफरेंस बनेगा. तो हम जहां पे नया नोड इंसर्ट करते हैं वहां से लेके रूट नोड तक जितने भी नोड है, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर अपडेट करेंगे. Now if you update your balance factor and after that no problem, 0, 1, -1, no problem, leave it, काम खत्म. लेकिन जब आपने बैलेंस फैक्टर अपडेट किया और कहीं ना कहीं आपको 2 या और कुछ मिला, तो सोचेंगे कि भाई उसको बैलेंस कैसे करना है. So it is binary search tree. So inserting a value will be similar to the binary search tree. But after you insert a value, you have to calculate balance factor of each and every node. We have to recalculate it. And after calculating it, अगर वो imbalance होता है तो rebalancing का process करेंगे. Simple. So let us create AVL tree for given data. जस्ट BST की जैसे ही आपको यहाँ पे एक डेटा सीक्वेंस मिल जाएगा एंड यू विल क्रिएट योर AVL ट्री नाउ. सो सबसे पहले लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. Insert 50 and when we start, only one node, new node becomes the root node, and along with that the balance factor 0. That is your step number 1. You go for the second step. Insert 35. At that time you already have 50 and you go for the new value 35. 35 is less than 50. You go to left side. You found a place. Insert 35. After you insert 35, recalculate balance factors. Okay,
सो 35 का बैलेंस फैक्टर 0, 50 का बैलेंस फैक्टर 1, लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1, राइट सब ट्री का हाइट 0, सो बैलेंस फैक्टर बिकम्स 1. Okay, let's go and have a look at step number 3. Insert 70. Now at that time we already have 50 and we have 35. We want to insert 70 here. Now 70 is greater than 50, so we go to right, जगह मिल गई, insert करो 70 को, and you recalculate balance factors. अब बैलेंस फैक्टर को रिकैलकुलेट करने की जगह मतलब जरूरत कहां पे पड़ेगी? 35 का बैलेंस फैक्टर 0 का 0 ही है. 70 इज अ न्यू नोड, वो लीफ नोड है, तो उसका बैलेंस फैक्टर भी 0 रहेगा. चेंज किसका होगा? 50 का, पेरेंट नोड. द बैलेंस फैक्टर ऑफ 50 विल बिकम 0 नाउ. नाउ एक्चुअली जहां पे आपने नया नोड इंसर्ट किया वहां से लेके रूट नोड तक का आप पाथ देख लो, चेंज सिर्फ वहीं पे होगा, बाकी नोड जैसे हैं वैसे ही. स्टेप 4, insert 20. Now at that time we already have 50, 35 and 70. Now where do we insert 20? 20 is less than 50, we go to left. 20 is less than 35, we go to left. और जगह मिल गई तो 20 को इंसर्ट करो. कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर. 20 का बैलेंस फैक्टर 0, 35 का बैलेंस फैक्टर 1 एंड 50 का बैलेंस फैक्टर 1. बाकी जो है ऐसे ही रहेगा. Now still we do not have any problem, क्योंकि जो भी बैलेंस फैक्टर्स हमने कैलकुलेट किए हैं all are within the range. Let's have a look at step number 5. Insert 66. We already have 50, 35, 20, 70 and we want to insert 66. 66 is greater than 50. Go to right. Now 66 is less than 70. Go to left. जगह मिल गई, इंसर्ट करो. कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर. 66 का 0, 70 का 1 हो जाएगा और 50 का 0 हो जाएगा. नए नोड से लेके रूट तक का पाथ डन. बाकी जो है वैसे ही. नाउ स्टिल वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक. बैलेंस फैक्टर्स आर विद इन द रेंज. Let's continue. Let's try to insert 40 then. So let me bring this part. I bring the same tree here. Okay. This was the tree, and next what we want to insert now? 40. I'll not write each and every step now onwards. Let's go through it. So 40 is less than 50, go to left. 40 is greater than 35, go to right. जगह मिल गई, 40 को इंसर्ट करो. अगर 40 को इंसर्ट करते हो, रिकैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर. 40 का हो जाएगा 0, 35 का भी हो जाएगा 0, 50 का will remain 0. No problem? Okay, go for the next one. Next is 80. 50 के राइट में, 70 के राइट में जगह मिल गई 80.
80 से लेके रूट तक बैलेंस फैक्टर अपडेट. 80 का 0, 70 का भी 0 and 50 remains 0, no change. Now this is a perfectly balanced tree. हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर 0 है. ओके, नेक्स्ट 37 कहाँ जाएगा? फोर्टी के लेफ्ट में जाएगा 37. 37 का 0, 40 का 1, 35 का बैलेंस फैक्टर -1 एंड 50 का बैलेंस फैक्टर 1. करेक्ट. So still we do not have any problem. Go for the last one, 68. 66 के राइट में 68 जाएगा. न्यू बैलेंस फैक्टर्स 68 का 0, 66 का -1, 70 का 1 और 50 का 0. 50 के लेफ्ट में देखो 3 हाइट और 50 के राइट में देखो 3 हाइट. So 3 minus 3 becomes 0. So till this time we do not have any problem, and this is, we can say, is AVL tree. This is still an AVL tree. एडिशनल पार्ट क्या हो गया? हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. बाकी जो बाइनरी सर्च ट्री था वैसे ही. Now let's think about the problems now. अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन what if balance factor is something like 2 or -2? अगर मैं कोई ऐसा वैल्यू इंसर्ट करता हूं जिसकी वजह से बैलेंस फैक्टर इनवैलिड हो जाता है, then what we discussed, we have to make some rotations to rebalance this thing. बैलेंस फैक्टर इनवैलिड होगा मतलब आपका ट्री जो है वो इम्बैलेंस हो गया. तो इम्बैलेंस होने के अलग अलग टाइप्स हैं. व्हेन यू से इट इज इम्बैलेंस, और वो इम्बैलेंस क्यों हुआ, व्हाट यू हैव डन सो योर ट्री बिकम्स इम्बैलेंस. अगर इंसर्ट की बात करते हो तो डेफिनेटली आपने इंसर्ट किया तभी इम्बैलेंस हुआ, लेकिन वो इंसर्ट कहाँ किया आपने compared to imbalanced node. Compared to imbalanced node. So there are 4 different types. When you say your balance factor of a node becomes -2 or 2 या फिर -2 अगर हो जाता है बैलेंस फैक्टर, then it is not a valid balance factor. And we say node A is therefore becomes imbalanced node. तो A को ध्यान में रखते हुए आप बोलोगे कि there are 4 different types of imbalances. कौन imbalance हुआ? A. कौन सा नोड imbalance हुआ? जिसका बैलेंस फैक्टर वैलिड नहीं है उसको हम बोलेंगे कि this node becomes imbalanced. And keeping that node in mind, we will check where we have inserted a new node. जो नया नोड डाला वो compared to A कहाँ डाला मैंने? So if this is your A, तो पहले तो आप ये बोलोगे कि A के लेफ्ट हो सकता है या A के राइट में हो सकता है नया नोड, राइट? A के लेफ्ट में या तो A के राइट में. But when you think about A left or A right, those left and right are sub trees. वो लेफ्ट और राइट जो भी है, A का लेफ्ट या A का राइट जो भी है, it is again a sub tree. और अगर उस ट्री की बात करूं तो वो ट्री के अंदर भी आपको लेफ्ट राइट पार्टीशंस मिलेंगे.
Okay, so based on this you are going to decide a का लेफ्ट और राइट हो सकता है, एंड देन जो सब ट्री है उसका भी लेफ्ट एंड राइट हो सकता है. सो नाउ यू डिसाइड ये कौन बनेगा, एल एल. ये कौन बनेगा, एल आर. दिस वन, so we have four different types of imbalances. LL is what, left subtree of A. अब कंफ्यूजन हुआ सर, दो बार लेफ्ट सब ट्री मतलब क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ LR. What it says, a right subtree of something. So it is right subtree of something. This is something. अब वो something क्या है? That something is actually left subtree of A. तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है? लेफ्ट साइड और लेफ्ट सब ट्री ऑफ किसका? ए का. सो दैट इज योर एल आर. अगर इस तरह से आप ड्रॉ करते हो तो आप जो पाथ फॉलो करोगे वो लेटर पकड़ोगे. एल लेफ्ट साइड, एल राइट साइड, आर, एल आर. लेकिन जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आप ऑफ करके बोलोगे, दिस इज ऑफ. तो आपको रिवर्स देखना पड़ेगा, राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए. You have to understand this carefully because multiple times students are getting confused in these notations. अब नोटेशन अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आपके सामने ट्री होता है और ट्री के हिसाब से ये आप आसानी से समझ जाओगे. कंफ्यूजन कब होगा? जब शॉर्ट नोट बोला है लिखने को एंड यू आर डिफाइनिंग दीज नोटेशंस. तो जब डिस्क्राइब करते हो तो गलती करते हो. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग दिस थिंग्स. अदरवाइज आप आसानी से समझ लोगे कि जहां पे भी प्रॉब्लम हुआ वहां से नया नोट कहां पे था. चेक इट. अगर प्रॉब्लमेटिक नोट से लेके नए नोट तक जाना है तो मैं कहां जाता हूं? राइट एंड देन लेफ्ट, RL. इस तरह से अगर सोचो तो सिंपल है. Right? So are you clear with this thing? Now we have 4 different types. अभी भी हमने ये नहीं देखा कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. We have only thought of possibilities क्या हो सकती है. We may have 4 different possibilities. अब वो चारों पॉसिबिलिटी को एक एक करके कंसिडर करेंगे. Let's start with the first one, LL, जो इजी है. LL प्रॉब्लमेटिक नोड के लेफ्ट साइड जाओ, जो सब ट्री मिला उसमें भी लेफ्ट साइड जाओ. दैट गिव्स यू LL imbalance type. So if you say this is your AVL tree, existing AVL tree, something like here you have a tree with height h, here you have another tree with height h, तो B का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0 क्योंकि लेफ्ट साइड h हाइट, राइट साइड भी h हाइट, h माइनस h 0. Now let us have this as a subtree with height h again. तो A का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? You have 1 plus h, so h plus 1 minus h, so
positive 1 will be the balance factor. So we say fine, this is a valid AVL tree. Valid existing AVL tree. Now if you insert a new node here in T1, अगर आप T1 में एक नया नोड डालते हो, क्यों? क्योंकि आपने भाई बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से कंपैरिजन किया एंड आप T1 के अंदर चले गए, वहां पे जहां जगह मिला आपने नया नोड भी डाल दिया. तो नया नोड कहां गया? T1 में. सपोज इफ योर न्यू नोड हैज बीन इंसर्टेड इन T1, तो T1 का हाइट 1 से इंक्रीज हो जाएगा. So height of T1 becomes h plus 1. अगर T1 का हाइट h plus 1 हुआ तो B का बैलेंस फैक्टर अपडेट होगा. now बैलेंस फैक्टर किन किन के अपडेट होंगे? नए नोड से लेकर रूट नोड तक, राइट? तो B का बैलेंस फैक्टर अपडेट हुआ 1 एंड A का बैलेंस फैक्टर अपडेट हुआ 2. 2 इज नॉट अ वैलिड बैलेंस फैक्टर, तो हमें प्रॉब्लमेटिक नोड मिल गया. प्रॉब्लमेटिक नोड इज A. A के हिसाब से अगर आप देखो तो आप जाते हो लेफ्ट साइड एंड एक और बार लेफ्ट साइड. सो दिस बिकम्स LL imbalance. LL imbalance. Now this is how you should decide कौन सा imbalance है. एक बार अगर आपको imbalance टाइप पता चल जाए तो आप बोलोगे कि हाँ कौन सा रोटेशन करना है. For LL imbalance you are going to do only one rotation. You are going to perform one rotation on इम्बैलेंस्ड नोड. जो भी इम्बैलेंस नोड है वहां पे आप एक बार रोटेट करो. रोटेट कहां करोगे? लेफ्ट टू राइट. रोटेट कहां करोगे? लेफ्ट टू राइट. सो फॉर इम्बैलेंस टाइप LL इट रिक्वायर्स वन रोटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. left to right rotation. Now this is what is required. तो समझ लो कि आप A को पकड़ के खड़े थे और वहीं पे आपको रोटेशन करना है. You want to rotate it from left to right, वो जाएगा राइट साइड. A आपका जाना चाहिए राइट साइड, तो राइट वो जाएगा नीचे, राइट साइड वो जाएगा नीचे. गोल घुमा दो तो लेफ्ट साइड जो था वो ऊपर आएगा. B will come upward direction, so B will become your root now. इस तरह से आप रोटेट करते हो. मतलब सिंपल से समझ लो, if this is your tree and if you want to rotate this thing in this direction, okay, तो B जाएगा अप, A जाएगा डाउन और C और भी नीचे जाएगा. so what happens here? B आ गया ऊपर, A चला गया राइट साइड नीचे. बाकी जैसे था वैसा ही रखो. तो ये समझने के लिए एक रोटेशन मारा हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The same rotation we have performed here. B आ गया ऊपर, लेफ्ट से ऊपर आया और ऊपर जो भी था वो राइट साइड नीचे गया. Now when you do this rotation, तो बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करेंगे. T1 का बैलेंस फैक्टर क्या था? H plus 1. T2 और T3 दोनों HH थे. अब चेक करो बैलेंस फैक्टर क्या होगा. A का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0, B का भी बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0 बिकॉज B के लेफ्ट में H plus 1 है और B के राइट में एक स्टेप एंड देन H. तो दोनों इक्वल हो गए दोनों साइड. सो बैलेंस फैक्टर ऑफ B बिकम्स 0.
तो रोटेशन होने के बाद जो बैलेंस फैक्टर आपको मिलता है दैट इज वैलिड. 0 0, इट्स ओके. And that's the solution. If you have LL imbalance, तो आप एक रोटेशन करोगे लेफ्ट टू राइट और वो परफॉर्म होगा कहां पे? इम्बैलेंस्ड नोड पे. यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट थिंग ऑन imbalanced node. Any confusion till now? Huh? Oh, yeah, I forgot to describe that thing. Yes, let us see that part. Now, when you rotate, what happens with the child node? Let us think about this. It is a binary search tree, right? Binary search tree. If root is 10, तो उसके लेफ्ट में 10 से छोटी वैल्यू होगी और उसके राइट में 10 से बड़ी वैल्यू. Perfect? Now let's say if you want to perform a rotation on 10, अगर आप 10 पे रोटेशन करना चाहते हो. Now let me have one more node here. 1. Let's say you want to perform a rotation on 10 and the rotation is left to right. क्या होगा? 5 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, 16 और भी नीचे चला जाएगा. सो वी से ओके 5 को हमने ऊपर लिया तो 10 बन गया 5 का राइट चाइल्ड और 16 और नीचे चला गया. सो 16 और 16 का जो भी है वैसा ही रहने दो. वी डोंट सी दैट. तो इतना हो गया. अब 5 के लेफ्ट में 1 था, वो भी ऐसा ही रहेगा. लेकिन 5 के राइट में क्या था? 8. 5 के राइट में 8 था लेकिन यहां पे तो 10 आके बैठ गया है. तो 8 जो है आपका बीच में लटकेगा. भाई मैं कहां पे जाऊं? मैं कहां जाऊं? डिसीजन कैसे लोगे? बाइनरी सर्च ट्री. 8 इज व्हाट ग्रेटर देन 5. तो 5 के तो राइट में जाना चाहिए पक्का. लेकिन जैसे ही वो राइट में जाता है 10 बोलता है तू मेरे ऐसे छोटा है. कहां जाएगा तू? कहां जाएगा? 10 के लेफ्ट पे. तो 5 का जो राइट चाइल्ड था वो 10 के लेफ्ट में गया. दैट्स व्हाट हैपेंस हियर. बी का जो राइट चाइल्ड था T2, that goes in the left child of root, which is A. Okay, B का जो राइट चाइल्ड था वो A के लेफ्ट में गया. So that you have to take care. Now this is LL imbalance. Yes. So T1, what was the height of T1? H plus 1. And the height of T2 and T3? H. H minus H becomes 0. तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं. अब प्रॉब्लम कहां पे है? B के लिए. B के लेफ्ट में हाइट क्या है? H plus 1 माइनस B के राइट में हाइट क्या होगा? 1 प्लस H. ये हो गया राइट का. दैट गोज 0.
Okay, so LL imbalance. Let us see few examples. Let's see few examples. A new example entirely because we want to focus on LL only. Let's say I say that insert 20. Fresh AVL tree आप बना रहे हो 20. नया node, root node, the only node, balance factor 0. Next, if I say insert 15, goes on the left, balance factor, still no problem. Next, I will say insert 10, balance factors, problem. Now compared to imbalanced node which is 20, compared to 20, नया नोड क्या डाला 10. कहां पे 20 के लेफ्ट साइड जाओ तो जो सब ट्री है उसके अंदर भी लेफ्ट साइड LL. सो दिस इज LL इम्बैलेंस. अगर LL इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस्ड नोड पे आप लेफ्ट टू राइट रोटेशन परफॉर्म करो तो क्या हो जाएगा 20 जाएगा नीचे 15 आएगा ऊपर और 15 के लेफ्ट में जो था ऐसे ही. And now if you calculate your balance factors 0 0 0. So we have balanced our tree. Okay, what if I say next you insert 8. Perfect. Balance factor update हो गए 0 1 1 no problem fine. What if I say insert next you insert 6. Balance factor update करो as soon as you found balance factor 2 or minus 2 you will say this is the imbalanced node. वहीं पे रुक जाओ. Try to balance it. So 10 is the imbalanced node. नया node क्या डाला 6. Compared to 10 6 कहाँ पे गया left LL. So this is LL imbalance. LL imbalance है तो हमें क्या करना है we perform one rotation from left to right. कहाँ पे करोगे imbalanced node पे करोगे बाकी भूल जाओ बाकी जो भी है ऐसा ही रहेगा. So if I perform a rotation on 10 तो 15 और 20 को कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके 15 और 20 जो भी है ऐसे ही रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी विल परफॉर्म रोटेशन ऑन 10. 10 जाएगा नीचे उसकी जगह लेगा 8 और 8 के लेफ्ट में जो भी था ऐसे ही. recalculate the balance factors. And you have balanced binary search tree. So this is AVL. Is that clear? જ્યારે પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે જોવાનું. સિમ્પલ વાત છે જ્યારે પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે જોવાનું. As of now I want you to focus on LL. So मैं हर बार आपको वही एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पे LL पॉसिबल बनता है. इट्स नॉट द थिंग कि हर बार LL बनेगा. कभी LL बनता है कभी LR बनता है कभी RL बनता है तो RR बनता है कभी कुछ भी नहीं बनता. इट्स ओके. लेफ्ट
We talk about subtree. We do not talk about entire path. Okay, let us go for your example. Now this is your AVL tree. Now what if I say insert 3? Your question. What if I say insert 3? कहाँ जाएगा? Recalculate balance factors. We found problematic node. Compared to 15, 3 कहाँ पे था? Compared to 15, लेफ्ट सब ट्री के अंदर लेफ्ट सब ट्री में था, बस इतना ही देखोगे. वी टॉक अबाउट सब ट्री में कहीं पे भी अंदर हो सकता है. वो 15-20 स्टेप के बाद भी है तो भी आप सोचोगे LL, क्योंकि जब आपको रोटेशन परफॉर्म करना है तो आप कहाँ पे फोकस करते हो? यू फोकस ऑन दिस मच पार्ट ओनली. जब रोटेशन करते हो तो इतना ही पार्ट फोकस करते हो, नीचे जो भी है रहने दो. दैट्स द रीजन वी फोकस ऑन 2 स्टेप LL. okay, well in this case we have decided this is LL imbalance. एक रोटेशन परफॉर्म होगा कहां पे? 15 पे. सो व्हाट शुड बी योर रिजल्ट? वेल 15 जाएगा नीचे और 15 का जो भी था ऐसे ही रहने दो. 8 आएगा ऊपर, 8 का लेफ्ट जो भी है रहने दो, लेकिन 8 का राइट जो है वो बीच में लटकेगा. 8 का राइट जो भी है वो बीच में लटकेगा. देन कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? 8 ये बोलेगा तू जाएगा राइट पे, लेकिन वहां पे 15 बैठा है, वो बोलेगा आजा बेटा तू मेरे लेफ्ट में आजा. राइट? एंड दैट इज योर AVL tree. Why AVL? Calculate balance factors. That will be your AVL tree. अगर हर बार आपने परफेक्ट रोटेशन किया है तो रोटेशन परफॉर्म होने के बाद आपको बैलेंस फैक्टर सही मिलेंगे. सही मतलब वैलिड मिलेंगे. 0, 1, -1 से ही मिलेंगे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक रोटेशन परफॉर्म होने के बाद भी आपका इम्बैलेंस रहा. Now there will be need of multiple rotations, देखेंगे बाद में. LR या RL है तो मल्टीपल रोटेशन चाहिए, लेकिन LL में एक रोटेशन. तो अगर LL आपको समझ में आता है तो RR सिंपल है. उसका मिरर लेफ्ट लेफ्ट जाओ, उसका मिरर राइट राइट. मिरर है तो जो रोटेशन LL में किया उसका रिवर्स रोटेशन RR में करेंगे. RR में राइट टू लेफ्ट रोटेशन मारेंगे. कहां पे? इम्बैलेंस्ड नोड पे. और B का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बीच में लटकेगा अगर, तो जाएगा कहां? A के राइट पे. So let's see few examples. Again, we'll take a fresh tree. We'll create a fresh AVL tree just like before. 20 new node. 30 कहाँ जाएगा? राइट पे. कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि बैलेंस फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 0 and -1. But what if I say insert 40? Then you recalculate balance factors and you have a problem. Compared to problematic node 20, imbalanced node 20, नया नोड 40 कहाँ पे गया? राइट सब ट्री के अंदर, राइट सब ट्री राइट साइड में. सो इट बिकम्स RR इम्बैलेंस. इम्बैलेंस्ड नोड पे आप राइट टू लेफ्ट रोटेशन मारो. 30 becomes your root, 20 goes on left,
40 as it is. And finally you have balanced tree. Few more examples. What if I say insert 50? Calculate balance factors. No problem. What if I say insert 60? प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? 40 पे. 40 पे एक रोटेशन मारो and your result will be what? Look, 30 and 20 remains as it is. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहने दो. फर्क कहाँ पे पड़ेगा? 40 जाएगा नीचे और 50 आएगा ऊपर, और 50 के राइट में जो भी था ऐसे ही. Balance factors. No problem. So resulting tree is AVL tree now. So LL and RR easy है. लेफ्ट लेफ्ट तो लेफ्ट से एक रोटेशन मार दिया राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड बढ़ गया था तो उसको राइट साइड खींच लो. अगर राइट राइट गए तो राइट साइड बढ़ गया, उसको लेफ्ट साइड खींच लो. वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. एक रोटेशन एंड वी आर डन. द कॉम्प्लेक्स पार्ट कम्स with LR or RL. Yes? વચ્ચે એક નોડ લટકે છે તો બાઇનરી સર્ચ ટ્રી પ્રમાણે જ. Clear? Okay. So the complex part comes when we have LR या तो फिर RL imbalance. पहला लेटर आपको बताएगा इम्बैलेंस नोड के साइड, कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड. और दूसरा लेटर बताएगा कि उसके अंदर मुझे कहां जाना है, राइट साइड. अब वो राइट साइड में कहीं पे भी हो सकता है, राइट के अंदर वो कहीं पे भी हो सकता है. डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट. सो यस, वी हैव अ न्यू नोड inserted in actually the right subtree of left subtree of A. So it is LR imbalance. It is LR imbalance. अब अगर ये LR imbalance है तो आपको दो रोटेशन परफॉर्म करने हैं. आपको दो रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी आप इस ट्री को वापस बैलेंस कर पाओगे. नाउ द फर्स्ट रोटेशन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट on subtree. And the second rotation will be from left to right on imbalanced node. On imbalanced node. So अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, if you have A, B, T1, T2, T3, T4, all the heights earlier working perfectly, no problem. But what if you have inserted a new node in T2? अगर आपने नया नोड T2 में डाला तो क्या होगा? A becomes imbalanced. A becomes imbalanced node. Imbalanced node के हिसाब से आपका नया नोड कहाँ गया? A के लेफ्ट में जाओ और वहां पे जो भी ट्री है उसके राइट साइड में गया वो.
So this becomes LR. अगर ये LR है तो पहला रोटेशन मैं कहां पे मारूंगा? सब ट्री पे. सब ट्री क्या है? ए का सब ट्री. दिस वन इज योर सब ट्री जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. So first rotation you are going to perform on a subtree. This is your first rotation. And the second rotation you will perform on imbalanced node. कौन सा है? A. तो A पे second rotation मारोगे आप. दो रोटेशन, पहला सब ट्री में और दूसरा imbalanced node पे. Now how it looks? Something like this. So अगर दो रोटेशन मारने हैं तो आप पहला रोटेशन जैसे ही लगाते हो, दैट विल बी योर इंटरमीडिएट टेम्पररी ट्री. जब आप पहला रोटेशन खत्म करते हो तो वो एक टेम्पररी ट्री है, इंटरमीडिएट ट्री. when you are done with the second rotation आपको फाइनल ट्री मिलेगा. ओके, लेट्स परफॉर्म द फर्स्ट रोटेशन. बी पे पहला रोटेशन मारता हूं तो बी जाएगा नीचे और डी आएगा ऊपर. सी और भी नीचे चला गया. बाकी का ट्री जो भी था, नो चेंज. Now this is intermediate tree. अभी भी second rotation मारना बाकी है. Now let's perform that second rotation. And that second rotation is on A. तो A जाएगा नीचे और D आएगा ऊपर. बाकी जैसे भी है छोड़ दो. But now you see कुछ बैलेंस परफेक्ट रहा अभी भी. हाँ, अब ये बोलोगे सर पहले भी बैलेंस ही था, लेकिन फॉरगेट इट. आई जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट आर द रोटेशंस और वो रोटेशन कहाँ पे जाते हैं. सो द सेम थिंग हैपेंस. अब आप ये बोलोगे कि हाँ, अगर डी का लेफ्ट चाइल्ड कुछ होता तो कहाँ जाता? अगर डी का कोई लेफ्ट चाइल्ड होता तो वो कहां पे जाता? कहां पे जाएगा? बी के राइट में. डी का लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी था. जब रोटेशन परफॉर्म किया तो डी के लेफ्ट में बी आ गया. तो जो लेफ्ट चाइल्ड था वो बीच में लटक रहा है. अगर वो लटक रहा है तो कहां पे जाएगा? वो जाएगा बी के राइट में. बी के राइट में. एंड सेम थिंग, अगर डी का राइट चाइल्ड होता तो कहां पे जाता? नाउ पहले रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो वहीं पे रहता. लेकिन जब आप सेकंड रोटेशन मारते हो तो बीच में लटकेगा. एंड वो कहां पे जाएगा? ए के लेफ्ट में. यू हैव टू लुक एट दीज पॉसिबिलिटीज ऑल्सो. नहीं समझ में आता? बाइनरी सर्च ट्री देख लो कहां जाना चाहिए. राइट? लेसर एंड ग्रेटर. So with this understanding, we have to go for two rotations. पहला rotation सब ट्री पे, दूसरा rotation imbalanced node पे. And that gives you the result, final result, which will be balanced tree. Let us see a few examples. Insert 20. The first node, no problem, balance factor 0. Insert 10. Goes on the left. Balance factor 0 and 1, no problem.
insert 15 goes on the right side of 10. Balance factor. Problematic node. उसके हिसाब से नया नोड 15 कहाँ गया? पहले लेफ्ट और उसके बाद राइट. सो LR. अगर LR है तो दो रोटेशन, पहला सब ट्री पे और दूसरा इम्बैलेंस्ड नोड पे. When I go for first rotation, 15 ऊपर आएगा और 10 नीचे जाएगा. 20 को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. But when I perform a second rotation on 20, 20 नीचे जाएगा और 15 ऊपर आएगा. उसके लेफ्ट में 10 जैसे भी है छोड़ दो. And now if you calculate balance factors, valid. Okay, what if I insert next? What if I insert 5? No problem. What if I insert 13? No problem. What if I insert 12? A problematic node. Compared to 15, new node 12 कहाँ पे गया? 15 के लेफ्ट साइड जाओ, जो भी सब ट्री है उसके राइट में जाओ. दो स्टेप ही देखने हैं आपको. सो इट इज LR. अगर LR है तो पहला रोटेशन सब ट्री में और दूसरा रोटेशन इम्बैलेंस्ड नोड पे. पहला रोटेशन सब ट्री में लगाओ, 10 जाएगा नीचे और 13 आएगा ऊपर. ठीक है. 10 के लेफ्ट में 5 था ऐसे ही, लेकिन 13 का लेफ्ट चाइल्ड जो था 12 वो अब बीच में लटक रहा है, तो वो जाएगा 10 के राइट पे. बाकी का ट्री एज इट इज, नो चेंज. पहला रोटेशन खत्म. नाउ व्हेन यू आर डन विथ फर्स्ट रोटेशन, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज इंटरमीडिएट ट्री. लेट्स गो फॉर द सेकंड रोटेशन, उसके बाद बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. सो द नेक्स्ट 13 goes up, 15 goes down, 20 as it is. 13 के लेफ्ट में 10 और बाकी जो भी है as it is. And now you calculate balance factors. And that gives you the balanced AVL tree now. So I hope you have understood the rotations LL, RR, LR. RL कैसा होगा? LR का mirror. We'll stop here for today. Okay. And in a next lecture on Monday, we'll continue with RL. Tomorrow you have a lecture, extra lecture arranged. Now, as long as you are having 9 to 11 DC and lab, extra lectures are arranged from 11:10 to 1:10. 11:10 से 1:10 के एक्स्ट्रा लेक्चर. एक लेक्चर मैं लूंगा डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा लेक्चर रहेगा ODP. Everything will be online. Links for WebEx Meet you will find soon in your Google Calendar. That's all for today. Thank you. See you soon.